Assalamu alaikum students. Today we are learning very important topic, heat. And this heat, alhamdulillah, most of your chapter in physics is related to your daily life. What is happening in your daily life, we will observe in the physics chapter of your 10th standard. So it is the interesting part कि we are practically seeing in our daily life. So one of the chapter is heat. So let's begin the chapter with an experiment. We will do a number of experiments in our this chapter. Let's see the we will read over here anomalous behavior, water, dew point, humidity, latent heat, regulation. These are all topics we are going to cover. And there is a chapter called heat in addition also. I think you have some basic knowledge of heat. So we are proceeding, or if we need further, we will come back to the basic again. Go to the chapter of 8th standard, heat, before going to this chapter. The chapter begins with the experiment. We have apparatus called thermometer, ice cube. Ice cube it is the jar. The jar में ice cube है. It is very light color. It is transparent glass है, तो इसका ऐसा PPT ग्लास जैसा बना हुआ है. तो sorry for that कि एकदम ट्रांसपेरेंट है जार. तो आइस क्यूब यहाँ होना चाहिए. उसके बाद we have burner, we have burner stand. These are apparatus we need. The procedure is that we have to take a few pieces of ice in the glass beaker, insert the thermometer. If we are putting the thermometer, see this is the glass and we are putting the thermometer inside, and there is a ice cube in this glass jar. Clear? If you are not able to see, understand that this is the glass jar and it is ice cube is there and thermometer is poured. तो थोड़ा समझेंगे तो अच्छा रहेगा कि now what is done कि we are putting a candle under the stand and we are heating the glass jar and we are recording the temperature. Every minute we are recording the temperature in the thermometer. Thermometer में we are recording. Now, so what is the observation? What we find? Let's see in this experiment. As the ice is heated, it start melting. है ना? Once it start melting, we have to stir. उसको stir करें ताकि वो जो heat है वो क्या है चारों तरफ बराबर हो जाए, सर्कुलेट हो जाए. Continue melting even after the ice start melting. So observation is what the temperature of the mixture remains 0 degree. This is degree, okay, not double zero. 0 degree Celsius till the ice melt completely. Till the ice melt completely. If we continue heating even after conversion of the ice into water, the temperature of the water start rising and it reach 100 degree Celsius. तो the observation is कि as we heat ना जब पूरा आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गया तब देखिए कि टेम्परेचर क्या हो रहा है 0 डिग्री पे मेल्ट हो गया. उसके बाद फिर और फर्दर हीटिंग कंटिन्यू रखे तो इट स्टार्ट राइजिंग द टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया है ना. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या कंक्लूजन क्या है देखते हैं. The conclusion comes at this temperature water start converting into steam और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वाटर क्या होता है स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है. टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट होता है और जब तक कि सारे का सारा वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाए. तो वहां पे भी मैं बताया था क्या फर्स्ट पॉइंट में कि आइस जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर क्या रहता है 0 पे रहता है
अनटिल अनलेस पूरा का पूरा आइस क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। और यहाँ पे सेम चीज आया कि 100 डिग्री पे कांस्टेंट आता है। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू बी नोटेड कि ये स्टूडेंट हम लोग इसी पे कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, वहां पे भी यहाँ पे भी। और कब तक कांस्टेंट रहता है कि वाटर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो जाए स्टीम में। तो वी हैव टू डिराइव द इन्फरेंस, कंक्लूजन से डिराइव करें कि कंक्लूजन क्या हो रहा है। कंक्लूजन इज दैट कि जब एज वी स्टार्ट हीटिंग द आइस तो क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे वो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे, ग्राफ में इंटरप्रेट कर रहा हूं मैं कि जब यहाँ पे दिस द टाइम टेम्परेचर दिस टाइम, दिस द टाइम रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस, टाइम रिप्रेजेंटिंग इन मिनट एंड दिस इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो 0 डिग्री पे क्या था, आइस था। अब जब हीट किया मैंने तो 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। हीटिंग कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट तक किया तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर थर्मामीटर में इंक्रीज नहीं हो रहा है, देयर इज नो, है ना। 4 मिनट तक किए, अभी भी क्या बता रहा है, थर्मामीटर का रीडिंग 0 बता रहा है। अब क्या हुआ कि 4 मिनट के बाद थर्मामीटर का रीडिंग बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये जो 4 मिनट तक क्या हो रहा था, ये 4 मिनट ये हो रहा था कि आइस जो है कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट हो गया। आइस जो है ये 4 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो हीट तो हम लोग दे ही रहे थे, तो टेम्परेचर क्यों नहीं राइज हो रहा था। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वी आर सप्लाइंग द हीट, कैंडल जल रहा था, हीट तो कंटिन्यू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो टेम्परेचर थर्मामीटर का इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा था। अब इसका रीजन क्या है कि ये जो हीट है 2 मिनट 4 मिनट हमने दिया, ये हीट गया किधर, ये हीट यूटिलाइज किधर हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, किधर यूटिलाइज हुआ। तो इसका आंसर है कि हीट यूटिलाइज होता है, ये जो सॉलिड आइस है, ये सॉलिड आइस का जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो यूटिलाइज करता है क्या चीज है, वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। वो मैटर स्टेट जो है यहाँ पे सॉलिड है, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, है ना, ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है। कौन, ये जो हीट जो था 4 मिनट का हीट, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल या एटम कन्वर्ट होने के लिए यूज होता है यहाँ पे। अब एक बार जब वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री में, कौन, सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर, अभी भी टेम्परेचर क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। तो कन्वर्ट हो गया अभी यहाँ पे 0 में, दोनों 0 में, लेकिन क्या हो रहा है, कन्वर्शन हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो गया। ये जब चेंज हो गया लिक्विड, अब वो टेम्परेचर इंक्रीज दिखा रहा है, टेम्परेचर थर्मामीटर में इंक्रीज दिखा रहा है। ये जो स्टेट को बोलते हैं कि एक खास पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉलिड है, अब उसमें पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट ऐड किए तो क्या हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। हम लोग अभी फर्दर देखते स्लाइड में। तो मैं आगे वाला प्रोसीजर बता रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है कि लिक्विड था, टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, अब वो होते होते 100 पे चला गया, 100 पे टेम्परेचर चला गया, यहाँ पे दिखा रहा है 20 मिनट बाद 100 पे टेम्परेचर चला गया। अब ये जो टेम्परेचर वापस से कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कब तक कांस्टेंट रहेगा, अभी यहाँ पे स्टेट क्या चल रहा है, लिक्विड से गैस होने वाला है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, लेकिन हीट ऑब्जर्व दे रहे, तो ये हीट यूटिलाइज हो रहा है बॉन्ड चेंज करने के लिए। जो लिक्विड स्टेट था वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में आ रहा है, तो जो मॉलिक्यूल या एटम का जो बॉन्ड है लिक्विड स्टेट का, वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हीट यूटिलाइज हो रहा है। तो ये यूटिलाइज हो रहा है स्टेट चेंज करने में, लिक्विड टू गैस में। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट बताएगा, लेकिन हीट यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर है वो क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। वाटर क्या था, लिक्विड था, स्टीम क्या है, गैस है, स्टीम इज गैस स्टेट। तो अब यहाँ पे ये स्टेट क्या बोलते हैं हम लोग, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते थे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम आइस टू वाटर, यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं।
तो देखिए स्लाइड में और फर्दर, होप यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, एक बार वापस से रिपीट करो, स्लाइड में दिया हुआ है क्या कि कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर अकर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एक ही टेंपरेचर पे कांस्टेंट का क्या था टेंपरेचर, क्या था टेंपरेचर आइस टू वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा कांस्टेंट टेंपरेचर था, 0 डिग्री सेल्सियस था। यही टेंपरेचर पे कांस्टेंट हुआ, यही टेंपरेचर पे कन्वर्शन हुआ, टेंपरेचर पे कन्वर्शन हो रहा है, हीट हम लोग डाल रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं। When ice is heated, it melt at 0 डिग्री सेल्सियस। जब आइस को हीट किए तो मेल्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में, सेम टेंपरेचर पे, है ना। मेल्ट हुआ, आइस था 0 पे और वाटर भी कितना हुआ, 0 पे ही हुआ। अब फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, वो टेंपरेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे टेंपरेचर कांस्टेंट है। द आइस ऑब्जर्व हीट एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ हीट कंटिन्यू टिल ऑल द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। अब ये जो ट्रांजिशन है, ये हीट ऑब्जर्व हुआ, क्यों हीट ऑब्जर्व हुआ, हीट ऑब्जर्व हो रहा है ना कांस्टेंट टेंपरेचर पे, तो ये क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट टेंपरेचर को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है जब वो हीट ऑब्जर्व कर लेता है तो। ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड फ्रॉम आइस टू वाटर द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व हीट बट इट्स टेंपरेचर डज नॉट इंक्रीज। यहाँ पे हीट ऑब्जर्व हो रहा है, ये हीट ऑब्जर्व हो रहा है लेकिन टेंपरेचर डज नॉट इंक्रीज। ये टेंपरेचर क्या चीज में यूटिलाइज हो रहा है, ये टेंपरेचर यूटिलाइज हो रहा है वीकनिंग द बॉन्ड, है ना, बॉन्ड वीकनिंग करने के लिए, किसमें, एटम या मॉलिक्यूल में। जो सॉलिड है वो ट्रांसफर होगा किसमें, ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड फेज में, ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड में। हीट ऑब्जर्व एट कांस्टेंट टेंपरेचर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा हीट बोलते हैं कि जब हीट ऑब्जर्व होता है, क्या चीज के लिए, कांस्टेंट टेंपरेचर पे, टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है और हीट ऑब्जर्व हो रहा है ना, क्या चीज के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये हीट क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड में ट्रांसफर होने के लिए हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 0 पे ही दिखा रहा है। The amount of heat observed at constant temperature by unit mass of solid to convert into liquid is called specific latent heat of fusion। अभी देखो यहाँ पे ये नहीं पता यूनिट मास ऑफ सॉलिड है, ये नहीं, आप क्या करो कि इतना बड़ा साइज लो और थोड़ा सा कैंडल्स में चालू करो, थोड़ा सा कैंडल्स में लगा देंगे, तो वो डिपेंड होता है कि भाई आपने मास कितना लिया। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड करेगा किस पे, स्पेसिफिक है कि आपने मास भी कितना लिया, मास के ऊपर है, के ऊपर डिपेंड है। आपने छोटा सा आइस लिया और एक कैंडल जलाया तो फटाफट मेल्ट होगा, बड़ा सा आइस लिया उसके बाद उसको क्या किए, कैंडल जला के हीट अप्लाई किए तो उसका टेम्परेचर राइज होने में काफी टाइम लगेगा, क्लियर, क्योंकि मास के ऊपर भी डिपेंड है वो। छोटे से मास में उसका जो हीट ऑब्जर्वेशन है वो कुछ अलग रहेगा और बड़े से मास में उसका हीट ऑब्जर्वेशन क्यों कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सॉलिड टू लिक्विड के लिए, है ना, तो वो क्या रहेगा, वो अलग रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। उसी तरह जब आइस को हीट किए, है ना, टेंपरेचर राइज हुआ, वाटर फ्रॉम 0 to 100 में राइज हो गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इवन दो हीट और एनर्जी इज अप्लाइड, है ना, वाटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई कर रहे हैं वाटर में, लेकिन क्या हो रहा है, टेंपरेचर डज नॉट राइज हो रहा है, टेंपरेचर क्या हो गया, 100 पे आके कांस्टेंट हो गया, पहले तो 0 पे था यहाँ पे, अभी इट कम टू 100 डिग्री सेल्सियस, अब वो 100 पे कांस्टेंट हो गया, अब फर्दर राइज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब वाटर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, सो लिक्विड टू गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए यूटिलाइज हो रहा है।
आखिर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, यहाँ पे हीट ऑब्जर्व हो रहा है। देखो ये जो है ना स्टीम बन रहा है, स्टीम में यूटिलाइज हो रहा है, स्टीम कन्वर्शन में यूटिलाइज हो रहा है। अब ये कब तक रहेगा, जब तक के सारे जो लिक्विड वाटर है वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक ये ऐसे रहेगा। तो ये फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर बाय अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड। यहाँ पे भी यूनिट मास इंपॉर्टेंट है। एक खास ये पार्टिकुलर ग्लास में है तो इसका क्या रहेगा, एक जो हीट अप्लाई करें तो एक पार्टिकुलर अमाउंट रहेगा। अब बड़े सा आप क्या करें, बिक कर दो और उसमें आप हीट करो एक एंगल से, तो वो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको हीट ऑब्जर्व करने के लिए, कन्वर्शन के लिए एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए रहेगा। मतलब डिपेंड करता है कितना मास है। तो ये फेज को भी क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वहां पे फ्यूजन बोल रहे थे, यहाँ पे वेपोराइजेशन बोल रहे हैं। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटेंट हीट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड होता है, उसका एग्जांपल हम लोग फर्दर लेंगे आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में। इससे पहले देखते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, और उसका स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, खास होता है। स्पेसिफिक मतलब एक पार्टिकुलर, यहाँ पे भी स्पेसिफिक लैटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। वाटर है आइस है, मेल्टिंग क्या है 0 पे है, बॉइलिंग क्या है 100 पे है। ये कितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, है ना, पर केजी 1 केजी और आइस कितना करेगा 33 किलो जूल एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, तब वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग छोटे इसमें देखेंगे, सिंपल में फिजिक्स सिस्टम में देखेंगे, ये साइंस सिस्टम है, ये फिजिक्स सिस्टम में देखेंगे तो कैलोरी पर ग्राम है। 1 ग्राम को कितना चाहिए, 1 ग्राम आइस को कितना चाहिए 80 कैलोरी चाहिए। ये दोनों यूनिट है, कैलोरी और किलो कैलोरी जूल जो है ये यूनिट है इसका हीट का। हम लोग फर्दर यूनिट आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो उसके में अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, जस्ट याद रखो ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। इसके बाद देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है वाटर का, इतना है ना 2256 किलो जूल 1 केजी ऑफ है ना वाटर ऑब्जर्व करेगा तो कन्वर्ट होगा किसमें, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो छोटे यूनिट में देखिए 1 ग्राम पानी है तो 540 कैलोरी क्या करेगा, हीट ऑब्जर्व करेगा तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, स्टीम में कन्वर्ट होगा। अभी देखो कॉपर का अलग है, कॉपर कितने में मेल्ट होता है, मेल्टिंग 1083 में, बॉइलिंग कब होता है 2562 में मेल्ट होता है। तो इसको इतने जूल किलो जूल इतना चाहिए, है ना, फिशन के लिए कैलोरी में इतना चाहिए ना। तो यहाँ पे भी क्या है पर केजी है और इतना किलो जूल है। तो इसी तरह दूसरे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए अलग अलग सेक्शन का, तो अलग अलग क्या होता है उसका रिक्वायरमेंट करता है। वाटर का हमारा इंपॉर्टेंट था, तो याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर का आप याद रखो। और 0 पे ये क्या होता है, मेल्ट होता है, बॉइलिंग होता है 100 पे। बाकी ये सब चीज याद करने का जरूरत नहीं है, जस्ट समझिए एक बार तो इंपॉर्टेंट है। ये पूरे स्लाइड में यही है। अभी देखते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ से, है ना, जैसे मैंने बताया कि वहां पे प्रेशर पे डिपेंड होता है। हमारे डेली लाइफ में हम लोग क्या इसका यूजेस है, एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से। देखो आइस बॉल बनाते ना, उसको क्या करते हैं, शीट करते, बड़े आइस क्यूब को है ना घिसते, फिर बाद में वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल ऑफ आइस लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हाथ से जमाते, और फिर बाद वो फिर डालते कलर डालते, उसको गोला बोलते हम लोग आइस बॉल, उसके बाद खाते हैं हम लोग अलहमदिल्ला। तो बहुत सारे लोग खाए होंगे, तो देखे हुए बनते हो, खासी गर्ल्स लोग का तो ये फेवरेट है अलहमदिल्ला। बॉयज ये सबसे पसंद नहीं करते उतना, खाते लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, गर्ल्स तो क्रेजी होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे फिजिक्स क्या यूज हो रहा है, अरे वो तो क्या था आइस क्यूब था, आइस क्यूब था ना, तो आइस क्यूब को क्या किए छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिए।
और कलेक्ट किए ग्लास में, उसके बाद में उसको जमा किए, वो जम पे गया। ये जमा कैसे? उसको तो टुकड़े में डिवाइड कर दिया ना, तो गिर जाना चाहिए, इधर 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 फट से गिर जाना चाहिए। ये जम क्यों गया? ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ये जमा क्यों? तो यहाँ पे देखो फिजिक्स यूज हो रहा है, आपको आंसर देने का रहेगा कि जमा क्यों, व्हाई इट इज स्टिक टुगेदर। वो तो ऑलरेडी था। लेट्स सी, ये हमारा आइस का जो स्लैब था वो क्या हुआ, शेडेड कर दिया हम लोग, टुकड़े में डिवाइड कर दिए ना, छोटे छोटे आइस स्लैब को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिए। अभी क्या किया हमने, प्रेशराइज किए ना, एक जो स्टिक रहता है बीच में, इस तरह से देखो, हाँ ये स्टिक पे डालते हैं बीच में ऐसा ना, अपने हाथ में लेते हैं, स्टिक डालते हैं और बीच में हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, चापते हैं और चाप के रिलीज करते हैं। तो क्या होता है, देखते हैं कि वो आइस क्या हुआ, सब स्टिक हो गया है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कलर या ग्लिसरीन है ये सब डालते हैं। ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसान करते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन हमारे बॉडी के लिए केमिकल्स से प्रिपेयर्ड होता है, तो हमें नुकसान होता है। वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके। तो रीजन क्या था यहाँ पे कि ये स्टिक क्यों हो गया? मैंने कहा कि भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब जो होता है ना, प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब वो शेड हुआ था, शेड में क्या हुआ, प्रेशर लगा शाफ्ट से, तो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया, वो डिवाइड हो गया छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, तभी तो टूट गया ना वो, तो क्रश किए, क्रश किए तो मतलब प्रेशर लगा है, तो क्या है, स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब स्मॉल पार्ट में जब डिवाइड हो तो मैं क्या किया, वापस से उसको प्रेशर किया। तो टेम्परेचर कितना था, 0 पे था, आइस क्या था, 0 पे था टेम्परेचर। जब मैंने प्रेशर किया ना उसको, तो क्या होता है, प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। कौन, आइस, क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है आइस। लेकिन उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 0 से कम ही रहेगा, है ना, क्या रहेगा, 0 पे रहेगा। तो 0 पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है जब मैं प्रेशर किया ना, तो क्या होता है कि पहले देखो 0 पे मेल्ट होने वाला था, है ना, आइस मेल्ट होता है। अभी जो प्रेशर करने की वजह से ये 0 से लेस में क्या होता है, है ना, 0 से लेस में क्या हो रहा है, मेल्ट होना है। एग्जांपल हो गया, एग्जांपल एक -2 या -3 ऐसा कुछ भी, ऐसे टेम्परेचर पे क्या हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट किया, है ना, मैं प्रेशराइज किया, मेल्ट होना स्टार्ट किया। अब जैसे मैंने रिलीज किया, तो जब से मैंने रिलीज किया उसका टेम्परेचर कितना था, रिलीज करने के बाद भी -2 -3, वो जो वाटर जो रिलीज क्या हो गया था, मेल्ट हो गया था आइस वाटर में, वो वापस से क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, वापस से लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाता है ना। इसलिए वो क्या होता है, स्टिक हो जाता है, इसलिए वो जुड़ जाता है आपस में, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो वो माइनस में था, है ना, तो 0 डिग्री था, मैं प्रेशराइज करके क्या माइनस में मैं क्या किया, उसको मेल्ट करवा दिया, -2 -3 कुछ भी। अब जैसे ही रिलीज किया उसका टेम्परेचर जितना में रहता है, जितना में क्या रहता है, पानी रहता है, नहीं क्या रहता है, वो आइस रहेगा, सॉलिड रहेगा, तो क्या होगा, वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है फौरन, और हमें क्या दिखता है, वो स्टिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ये ऐसे हमें बना हुआ दिखता है बाद में ना, शेडेड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बॉल। How does it converted? So I explained you already. If 2 small pieces of ice are taken and pressurized against each other for a while, they stick to each other. Why does this happen? So I explained to you, because of decreasing temperature of melting point, और वापस से मेल्ट हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल है, आपकी बुक में दिया हुआ है, रेगुलेशन। ठीक है, व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ एयर? रेगुलेशन में क्या है, एक ग्लास स्लैब लिए, है ना, ऑफ आइस, एक वायर लिए और एक 2 वेट ले लिए। अब ये ग्लास में जो वायर है ना, ये वायर को मैंने क्या किया, ग्लास स्लैब क्यूब, सॉरी आइस क्यूब है ना, आइस क्यूब, दिस इज आइस क्यूब, ये आइस क्यूब के ऊपर इधर कर दिया ऐसे, मतलब आधा इधर पार्ट रहेगा, वायर का आधा पार्ट इधर रहेगा। अब ये क्या किया मैंने, इसमें अटैच कर दिया वेट, वजन अटैच किया दोनों में, 1 kg, ½ kg, पावर कुछ भी वेट अटैच कर दिया। अब भी व्हाट इज ऑब्जर्व कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, और इसको काट के नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये जो वायर है ना, इसको काट के क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगा। तो धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आएगा, लास्ट में यहाँ तक पहुंच जाता है नीचे। लेकिन इसके बाद जो हम क्या देखे
जो हमें मेन चीज है कि वो आइस जो स्लैब है वो ब्रेक नहीं हुआ, ये काट के उसको क्या हुआ नीचे तक आ गया है ना, टेबल तक आ गया, ऊपर रखे थे आइस की स्लैब के ऊपर रखे थे और नीचे तक पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ, नीचे तक पहुंचने के बाद भी आइस क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। व्हाई इट नॉट ब्रेक, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। जिसका कंक्लूजन क्या है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन, ये तो क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं, है ना, ये वर्ड याद रखना, रेगुलेशन। इसमें क्या हो रहा है रेगुलेशन में कि जैसे हमने क्या किया था कि ये वेट लगाया, वेट का वजन होता है ना, दोनों तरफ से इक्वल वेट है। अब जब वेट लगा दिए तो क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है। आइस क्या हो रहा है, भले से टेम्परेचर 0 है लेकिन क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है। क्यों मेल्ट हो रहा है ना। अब ये प्रेशर पड़ने से मैंने क्या बताया कि ये मेल्ट किधर होगा, -2 पे -3 पे ही मेल्ट हो जाएगा, है ना। ये टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे रख दिए थे बाहर ऐसा, है ना, ऐसे रख दिए थे तो ये क्या हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। मेल्ट हो रहा है, जैसे प्रेशर रिलीज हो रहा है, जैसे प्रेशर रिलीज थोड़ा नीचे गया, -2 पे था टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, वापस से फ्रीज हो जा रहा है। जैसे नीचे गया ऊपर का फ्रीज हो गया, जैसे नीचे पहुंचा ये एकदम नीचे पहुंचा, ये जो ऊपर का पार्ट है उसका टेम्परेचर लेकिन -2 पे था, -2 -3 पे था, वो क्या हो रहा है, वापस से फ्रीज हो जाएगा, वापस से फ्रीज हो गया। ऐसे कि हमें क्या दिखता है, वो आइस ब्रेक नहीं दिखता है, हमें दिखता है कि वो आइस वापस से क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। तो इसका एक और एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में क्या है, स्केटिंग। जब जो स्विट्जरलैंड या कश्मीर में स्केटिंग करते हैं ना, तो स्केटिंग का जो शूज होता है ना, उसमें क्या होता है, थोड़ा शार्प होता है ना, वो क्या होता है, शार्प होता है नीचे से, और हम स्टिक भी रखते हैं हम लोग बैलेंस के लिए। तो आप देखेंगे पीछे मुड़ के ना कभी, तो वो आपका लैंडिंग नहीं मिलता है। आप जब कभी जाएंगे पीछे उछल में आपको लैंडिंग मिलता है, या आदमी कर दिया था रेत में जाओ तो लैंडिंग दिखता है, पीछे से लैंडिंग बन जाता है। तो आइस स्केटिंग करते हैं ना तो लैंडिंग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है, कि जब प्रेशर से हमने क्या किया था, हमारा वेट की वजह से क्या आइस का मेल्ट हो जा रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो वाटर पे क्या हो रहा है, हम लोग स्लिप हो रहे हैं, वो वाटर पे हम लोग स्लिप हो रहे हैं। आप आइस पे दौड़ो उतना तो फास्ट रन नहीं कर सकते, तो लेकिन क्या हो रहा है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वाटर पे क्या हो रहा है, हम लोग स्लिप हो रहे हैं, इसलिए हम लोग फास्ट मूव हो रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पीछे देखते हैं ना, वो जो वाटर था, प्रेशर आइस था, जो प्रेशर की वजह से वाटर में कन्वर्ट हो गया था, वो क्या होता है बेटा, वो वापस से आइस में बन जाते हैं, वो वापस से आइस बन जाते हैं, इसलिए हमें पीछे लैंडिंग नहीं दिखता है ना। जैसे अपने आगे बढ़ा, प्रेशर रिलीज हो गया, वो आइस था क्या हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज रेगुलेशन की वजह से ऐसा होता है। तो आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, गो थ्रू दिस वीडियो टू आवर्स और थ्राइस एंड रीड द चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।